A very good morning to all of you, my dear students. Welcome all of you to my Prerana YT classes. In this class today, we are going to discuss about one of the most eminent area of study of political science honors that comes under the third semester system, that is public administration. And in this class today, we are going to review about the theoretical perspectives of public administration, where there you find the foundation of classical theories. So आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, जहां हम क्लासिकल थ्योरीज के फाउंडेशन को पाते हैं। और क्लासिकल थ्योरीज में हम लोग अर्लियर डिस्कशन कर चुके हैं कौन कौन से थ्योरी आता है क्लासिकल थ्योरीज। मेनली the scientific management theory, F.W. Taylor, administrative management theory propounded by Luther Gulick, Orwick and Fayol, and third one, that is the ideal type of bureaucracy propounded by Max Weber. तो क्लासिकल थ्योरीज के अंडर ये जो 3 इम्पॉर्टेंट थ्योरीज आता है उसको आज के क्लास में एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी को हम आज के क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी और द क्लासिकल थ्योरी आर द अर्लियर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज डेवलप्ड इन द अर्लियर पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। तो स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जिसको हम क्लासिकल थ्योरीज मानते हैं उसका डेवलपमेंट कब हुआ था? इन द अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। और इस थ्योरी का पायनर कौन थे? हेनरी फेयल। और हेनरी फेयल कौन थे? एक फ्रेंच मैनेजर, एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और जिनका कंट्रीब्यूशंस पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, बेटर मैनेजमेंट इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हुआ था एक बुक के माध्यम से, जिनके आइडिया दिस बुक रिफ्लेक्ट्स actually what kind of management should be there, in which way a better management create a good organization, an efficient organization. It has been well placed in this book, that is name of the book is General and Industrial Management. तो हेनरी फेयल की जो आइडिया इस बुक के अंदर हम पाते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट कैसे बेटर होगा, बेटर होने से कैसे हम लोग एफिशिएंसी, इफेक्टिविटी और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को अचीव कर पाएंगे। तो इसका जो आइडिया है जनरल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में रिफ्लेक्ट है। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट बुक यहाँ हम पाते हैं ऑनवर्ड इंडस्ट्री, and that has been written by James Mooney and Alan Ruby in the year 1918. Onward Industry, General and Industrial Management, Henry Fayol की General और Industrial Management, Onward Industry of Alan Ruby and James Mooney, इसको याद रखना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। तो these important books are very important one, where there you find how management is very essential for an organization. Along with this, in 1937, in another work we can able to see here, that is the Papers on Science of Administration, which was brought into print by Luther Gulick. So all these works, लूथर गुलिक की पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइमल्टेनियसली फेयल की जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ऑनवर्ड इंडस्ट्री ऑफ जेम्स मूनी एंड आलन रूबी, all these works played a very key role in the development of the science of administration in the first half of 20th century. So Fayol, he mainly focused on which topics in this theory? The general issues and features of administrative organizations. एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन की फीचर क्या होता है और उसके अंदर जनरल इश्यूज, जनरल प्रॉब्लम्स क्या होता है, उसका सिस्टमेटिकली वो स्टडी किए, उसका सिस्टमेटिकली थ्योराइजिंग किए, और बाद में उनके आइडिया
जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बुक में उसको हम देखने को पाते हैं। लेटर ऑन these theories were developed by लूथर गुलिक एंड ऑरविक। तो उनका जो आइडिया था ऑर्गेनाइजेशन फील्ड की डेवलपमेंट के लिए, लेटर ऑन one of the two important political scientists, they got very much influenced by his ideas, where they formulated a set of universalized recognized principles of organization, and these formulations came to be collectively known as the classical theory of organization or the administrative theory। तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का प्रोफाउंडर थे पहले फेयल, और फेयल की जो आइडिया दो लोगों को बहुत ही प्रभावित किया था, वो कौन कौन थे? लूथर गुलिक और ऑरविक। और लूथर गुलिक, ऑरविक and simultaneously the ideas propounded by Henry Fayol, all these formulated a set of universalized recognized principles of organizations। Organizations के लिए universalized recognized principles का formulation हुआ उन तीनों के आइडिया को लेकर, and these formulations afterwards it came to be known as क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम किन किन के थॉट को पाते हैं? द आइडिया ऑफ फेयल, लूथर गुलिक एंड ऑरविक। These thinkers of administrative theory have provided some major basic premises of organization। तो इन तीनों थिंकर्स की आइडिया को लेकर हम एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ था, और जहां हम ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक प्रीमाइजेस और बेसिक प्रिंसिपल्स को यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल्स मानते हैं। सो व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीमाइजेस हियर? फर्स्ट, दे गिव importance to the structure of the organization or the administration organization। They give importance to the structure of administrative organization। यहाँ administration लिखा हुआ है, administrative organization। They give importance to the structure of the administrative organization। तो इन तीनों जो political thinkers थे, उनका जो आइडिया है एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ऑफ मैनेजमेंट में, तो उनका इम्पोर्टेंस किसके ऊपर है? द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द प्रोफाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्ट्रक्चरलिस्ट, बिकॉज दे गिव मच मोर एम्फासिस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को ज़्यादा ही फोकस किए हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्ट्रक्चरलिस्ट, बिकॉज दे कंसिडर विदाउट स्ट्रक्चर एन ऑर्गेनाइजेशन कैनॉट फंक्शंस। एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर है, इसी की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस इट परफॉर्म्स डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस। सो इफ देयर विल बी नो स्ट्रक्चर, हाउ कैन द फंक्शंस विल बी परफॉर्म? दैट्स व्हाई स्ट्रक्चर इट्स जस्ट लाइक द फाउंडेशन where the different kind of functions are always performed by different officials। Structure is a device through which human beings in an organization are assigned different tasks and they are related to each other। तो structure को these political thinkers of administrative theories, what they think about? They think about it's a device, और इस डिवाइस के माध्यम से ह्यूमन बींग्स एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मेंटेन करते हैं इन ऑर्डर टू फुलफिल द रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी के जो प्रोपाउंडर्स हैं, उनका मेन फोकस ऑर्गेनाइजेशन की किस पर है?
स्ट्रक्चर के ऊपर है और स्ट्रक्चर को वो बेसिक फाउंडेशन मानते हैं, एक डिवाइस मानते हैं और उसके ज़रिए बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस मेंटेन होता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑफिशियल्स. So as they have provided much more importance to the structure of the organization where different functions are performed, that's why these administrative thinkers, they are known as structuralists in the field of public administration. Number 2, development of universally valid principles of administration. तो यहाँ हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी का जो प्रीमाइजेस है, प्रिंसिपल्स है, इसको डिस्कशन कर रहे हैं. तो फर्स्ट था फोकस ऑन स्ट्रक्चर एंड सेकेंड वन डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सली वैलिड प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये जो तीनों थिंकर्स थे उनका आइडिया था प्रिंसिपल्स का डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स का डेवलपमेंट. अगर एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वैलिड यूनिवर्सली वैलिड प्रिंसिपल्स होता है तो उसको लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन बेटर इफेक्टिविटी, एफिशिएंसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव कर सकता है. दैट्स व्हाई दिस थिंकर्स दे हैड डेवलप्ड सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच दे थिंक्स दिस मस्ट बी यूनिवर्सली वैलिड. एक जगह पर उसका वैलिड होना नहीं चाहिए, हर जगह उसका रेलिवेंस होना चाहिए और हर जगह उसका बेनिफिट्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलना चाहिए. सो दिस प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन. और जो यूनिवर्सली वैलिड प्रिंसिपल्स का डेवलपमेंट हुआ था तो ये जो प्रिंसिपल्स ऐसे ही डेवलप नहीं हुए थे. बेसिकली इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस में जब फेल कंटिन्यूसली एक ऑफिशियल थे, एक फ्रेंच मैनेजर थे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका जो एक्सपीरियंसेस था उस एक्सपीरियंसेस को लेकर ही दिस प्रिंसिपल्स का डेवलपमेंट हुआ था और बाद में उस प्रिंसिपल्स का यूनिवर्सल वैलिडिटी को भी हम लोग पाते हैं. उसको लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन बेटर डेवलपमेंट को अचीव कर सकता है, इसको हम देख सकते हैं. नंबर 3 प्रीमाइजेस व्हाट इट इज साइंटिफिकली डेवलप्ड प्रिंसिपल्स. तो दिस थिंकर्स बिलीव दैट प्रिंसिपल्स दैट हैव डेवलप्ड आर साइंटिफिकली वैलिड बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल एंड मिलिट्री एक्सपीरियंसेस. जैसे कि मैंने कहा है फेयल एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एक फ्रेंच मैनेजर थे, तो उनका बहुत सारा एक्सपीरियंसेस था इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के फील्ड और मिलिट्री एक्सपीरियंसेस भी इन थिंकर्स की हैं. तो उसी के हिसाब से वो जो प्रिंसिपल्स को डेवलप किए थे उस प्रिंसिपल्स का डेवलपमेंट इन ए साइंटिफिक बेसिस में हुआ था और साइंटिफिकली टोटली वैलिड था. उसको लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट डेफिनेटली होगा, इसका दावा हम इस थ्योरी में देखते हैं. सो दे आर बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस. दे हैव साइंटिफिकली वैलिड, they have scientific validity. They consider the application of all these principles would ensure greater economy and efficiency in the organizations. तो साइंटिफिकली डेवलप प्रिंसिपल्स का डेवलपमेंट इन थिंकर्स की मिलिट्री एक्सपीरियंसेस, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंसेस के माध्यम से होता है, जहां हम उनका कंटिन्यूअस एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस की वजह से साइंटिफिक वैलिडिटी हम हर एक प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन फील्ड में हम देखते हैं. और इस प्रिंसिपल्स की डेवलपमेंट क्या लेकर आता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? ग्रेटर इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी. जो प्रिंसिपल्स का डेवलपमेंट किए थे उस प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर होता है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करेगा? ग्रेटर इकोनॉमी और एफिशिएंसी को अचीव करेगा. तो इस थिंकर्स की जो एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस थे मिलिट्री, इंडस्ट्रियल
एक्सपीरियंसेस थे उसी को लेकर साइंटिफिक वैलिड यूनिवर्सली वैलिड प्रिंसिपल्स का डेवलपमेंट हुआ और उस प्रिंसिपल्स बहुत ही सक्सेसफुली अप्लाइड होने के बाद हम लोग को क्या मिलता है? ग्रेटर इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. So students, these were the most important part of the administrative theory of management propounded by these three important thinkers, those who have provided a very significant amount of contributions in the field of management, how to achieve economic development, how to achieve a very good effectivity and efficiency in the field of administration. These are really remarkable one. So in the next video we will see about the most important contributions that has been laid by all these thinkers, starting from Henry Fayol, Luther Gulick and Orvik. So separately we will analyze in separate video. First of all, we will analyze Fayol's idea in the administrative theory of management through the formulation of 14th principle, and thereafter we will analyze Gulick principles and Orvik principles, how they have contributed in the field of administrative management theory. So if you will find any kind of doubts within all these aspects of our present study, share with me. If you like this video, please provide your likes, comments and share it. So see you in the next class. Till then, goodbye.